Hello, how are you? I hope you are very fine as ever. Now let's come today to the combination reaction we will deal with. Now we are dealing with MCQ. Once this is finished, I will try to give you every solution with a logic based concept about the combination reaction. This was the topics I am continuing for the last few days because when we learn everything about this particular reaction in exam, you might be getting as a 2 marks, 3 marks question also lengthy answer you have to write in terms of the descriptive form और वहां पर भी लिख सकता है या एमसीक्यू में जस्ट टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन. नाउ दिस इज पार्ट 3G of chemical combination and this is MCQ. Now which of the following, first one you have to read, which of the following is not a combination reaction. कौन सा रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अबे हमारा माइंड में एक चीज वो स्ट्राइक करना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं होता है पर वो क्या होता है, एक ए प्लस बी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, मींस आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा. अब देखो यहां पर बहुत सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहां से आपको थ्री एग्जांपल आपको दिया हुआ जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर. स्टेज स्पेसिफाई करने का हमको सिस्टम, दिस इज करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग एनीथिंग. स्टेज भी पर हम नहीं लिखने से कुछ नहीं होगा. फॉर द पीपल हु वांट टू गो फॉर साइंस स्ट्रीम इन फ्यूचर, फॉर देम टू लर्न in the state wise at room temperature different state. When you go to the outside the room temperature may be different at different places. So here what happens, hydrogen combining with oxygen forming water, this is also combination reaction. Calcium oxide we call it as a quicklime. in exam में यहाँ पर descriptive बहुत पूछता है आंसर, मैं इसको आपको कराऊंगा बाद में. कैल्शियम ऑक्साइड रेटिंग में क्वांटम इज हाइड्रेटेड. एक वो सोल्यूबल क्या करा, ये आपको चुना को लेकर के ड्राई सॉलिड स्टोन टाइप ऑफ थिंग क्रश और यू पुट इन वाटर, you will get a product called calcium hydroxide. Hydroxide is only possible when this is water soluble. ये आपके कौन सा फेस में होगा, लिक्विड फेस में, ठीक है. That's why it forms a solution. Solution always made with the help of a liquid and solid. Now let's come here. We have to study this one again and again. Magnesium is a metal, silvery white. It forms magnesium oxide, which is nothing but metal oxide. Metal oxide solid. Non-metal oxide gas. Okay. Now carbonate delta is nothing but heating. When you heat calcium carbonate, it breaks down into its own constituent. What are the constituent? Calcium oxide and carbon dioxide. Let's try to solve it in a dry test tube. When you heat it, you will get a product calcium oxide, and this goes to the air. And how do you find out this reaction? You take a candle here. You take a candle here, and the flame of the candle को सामने लेकर के आओ. If it अगर वो बुझ जाएगा, extinguish हो जाएगा. अगर वो बुझ जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रूफ कर देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज द एनिमी ऑफ फायर. सो यहां पर देखो सिंगल प्रोडक्ट कितना बना रहा है, एक कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम dissolved in water, it forms calcium hydroxide which is also called snakeline. ये भी सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है. और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी सिंगल प्रोडक्ट, पर ये सिंगल प्रोडक्ट नहीं बना रहा, ये टूट रहा है. ये बॉन्ड टूट करके किसमें हो रहा है, अपना कॉन्स्टिट्यूएंट में. तो यहां पर आपका आएगा ऑप्शंस आएगा. अगर जहां पे आपका ऑप्शंस आएगा ए बी एंड सी आर करेक्ट, आप उसको टिक मार्क कर दीजिए विदाउट सोचे समझे, क्योंकि ये सिंगल प्रोडक्ट combining of two elements, combining of two compounds, combining of two elements. देखो यहाँ पर हमने एलिमेंट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंबाइन नहीं है, ये फ्री स्टेट में, हम लोग साइंस में कहता है इसको फ्री स्टेट. ये आपका कंबाइंड फॉर्म हो गया और ये आपका कंबाइंड फॉर्म. तो कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन एक, कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बना रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक कंपाउंड बना रहा है. दो मॉलिक्यूल्स, थ्री मॉलिक्यूल्स दे मेक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एनॉल. तो यहाँ पर दो कंपाउंड बना रहा है. क्या बना रहा है,
स्नेक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, पानी, चूना पानी। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, सिंगल प्रोडक्ट बनाना है, दो दो एलिमेंट या दो दो कंपाउंड, पर यहाँ पर दो प्रोडक्ट है। आप किस में चॉइस करना है? ऑप्शन दिस आल्सो राइट, दिस आल्सो दिस। यू गो द ऑप्शंस वेयर देयर इज बोथ थ्री आर करेक्ट, टिक मार्क, क्योंकि ये तीनों में क्या है, सिंगल प्रोडक्ट। एंड सिंगल प्रोडक्ट इज द फीचर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉम्बिनेशन। वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिग्नल दे रहा है कि टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन करके ही बनता है। अच्छा, दिस इज फाइन, दिस थ्री आर करेक्ट, सो यू टिक दैट ऑप्शन। Now next one you come, which of the following is a combination reaction? तो यहाँ पर कंपाउंड नहीं दिया, यहाँ पर सिर्फ हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे दिया। ए एंड बी कंपाउंड, सी एंड डी, ये तो हो ही नहीं सकता। ये आइदर हो सकता है, बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, आने वाले लेक्चर में। ये एक्चुअली होता है ये होता है एक्चुअली वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रिसिपिटेट रिएक्शन में, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रिसिपिटेट रिएक्शन which will come when will come later on. Now A and B combine to C. क्या है यहाँ पर? सिंगल प्रोडक्ट, मैंने कहा था ना, सिंगल प्रोडक्ट इसका हॉलमार्क ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं इसे करूंगा। अच्छा सर, आपने ये तो करेक्ट कर दिया, पर सर यहाँ पर भी तो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। सिंगल प्रोडक्ट, यस राइट, लॉजिकली राइट है ये। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? ए एंड बी, जो ये साइन जो हम देते हैं ना, ये ऐसा करके जो प्रोडक्ट, मतलब आपको ये रिएक्टेंस हो गया और ये प्रोडक्ट बना रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, देखो यहाँ पर मेरा रिएक्शन क्या हो गया, ये इसको हम लोग साइंस में कहता है रिवर्सिबल। मतलब एक प्रोडक्ट बना रहा है, वो प्रोडक्ट फिर वो रिटर्न बैक्स में वही रिएक्टेंट में वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल, मतलब रिवर्स होना। आप कोई हिट करिए कहीं वॉल में, वो आपका रिवर्स ब्रेक आएगा, मतलब आपको वही पास आ रहा है, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट बना सकता है और ये रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट बना सकता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहता है सिंबल में हाफ एरो टू द अपोजिट साइड, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल। तो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है एक्चुअली, बेसिकली, ठीक है। तो ये भी हमारा रॉन्ग है। अब चलो सर, आपने कहा है टू और मोर एलिमेंट्स टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ये ठीक है लॉजिकली, but actually in most of the reaction which has been carried out in room temperature, मैं room temperature में ये करा गया। and जब रूम टेम्परेचर में करा गया है तो वहां पर दो एलिमेंट से करा हुआ है, तो हम लोग ये डेफिनेशन में मेनली वी विल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट इज ओनली A plus B equal to C and that is a single product, and this will be possible because this is a reversible reaction, and reversible reaction यहाँ पर होता ही नहीं है, क्योंकि एक मर्तबा बन गया तो बन गया कंपाउंड। हाँ, यहाँ से ये क्या होगा, रिवर्स नहीं होगा, पर यहाँ से ये क्या होगा, ये इवापोरेट हो जाएगा यहाँ पर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री। 60 डिग्री में पानी को मैंने बॉईल करा, वो अच्छा लगाया वाटर, ठीक है, वो आपको कन्वर्ट हो गया वेपर स्टेट में। यहाँ पर स्नेक लाइम को मैं नहीं कर सकता क्योंकि चूना पानी एक्सप्लोजन हो सकता है, मैग्नीशियम को नहीं कर सकता, वो बेस में कभी भी टूटेगा नहीं। तो ये साइन होता है बेसिकली रिवर्सिबल, मतलब रिएक्शन गो टू दिस साइड to the product and product may form to the reactant side. Now number 4, two or more. It may be sound correct, but we have studied through the NCERT and CBSE syllabus. This thing is not valid here. So the authentic and valid is the A plus B equal to C, and this is single product. So your correct option will be okay. Then as usual, if you like my video, मेरा explanation का कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, आप लोग को समझ में आया, दैट इज मोर सेटिस्फाइंग। मेरे को बहुत सेटिस्फाई लगता है जब मेरा स्टूडेंट समझता है और मेरे को कमेंट्स पास करिए कि कैसा लगा। अगर कहीं पे कोई वो डेफिसिट होगा, आई एम गोइंग टू रिवर्स and go back to the previous one and try to give you better explanation, but this is my best effort which I have given you. Combination reaction, don't forget, they have got the three properties. One, single product. Second, exothermic. Third, chemical properties of the product will not be the same of the chemical or physical product. I mean to say, chemical and physical properties of the product will not be the same of the reactant. ये प्रोडक्ट जो बन गया,
इनका केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका सब कुछ बदल जाएगा। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस, सब कुछ ये बदल जाएगा इसका कैरेक्टर, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, हमारा दो कंपाउंड हो गया, वो ए एंड बी का, ये सेपरेट हो गया। इसका और ए बी का डिफरेंट रिएक्शन होगा, ये अपना फॉलो करेगा, ये अपना फॉलो करेगा। ये दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंपाउंड करेगा ऐसा बिहेवियर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, और ये आपका ये कंपाउंड भी हो सकता है। देखो यहाँ पर कंपाउंड है, ये कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन कर रहा है, यहाँ पर सिंगल ऐसी, इसको हम लोग कहते हैं फ्री स्टेट और इसको कहते हैं कंबाइंड। और पर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोडक्ट दिया है, यहाँ पर हमको फर्स्ट कैंसिल कर देना। ये हम लोग पढ़ेंगे पीछे, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और इसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, विल कम लेटर ऑन। सो सब्सक्राइब माय चैनल and give your best comments. If you don't understand, I'm going to revise it again once again to make you fully understand. आप हम समझने के लिए I'll go to any extent to make you conceptually very strong. Till then, take care. Please pause it and do copying on. Thank you. Take care.